Hello, everyone, and welcome to the Small Talk with the Etsy Collective. Small Talk with the Etsy Collective is an initiative to bring you closer to the change makers, industry veterans, and Etsy sellers, and give you an opportunity to listen to their thoughts and find some inspiration that we all need right now. I'm really happy to share with all of you that Etsy Collective completed its 2-year anniversary milestone in August. Thank you to all of you for coming along with us on this journey. Your love and enthusiasm is what keeps us going, and we look forward to many more such milestones with you. With that, I'd like to share a celebratory video that our team has created. And with that, I'd like to introduce our team, Sunanda Krishna, who is the lead of marketing and PR for Etsy in India. The Etsy Collective is her passion project and something that she never tires speaking about. We also have Radhika and Riya, who are the stars behind the show. They will also be the ones who will be answering you in the chat box today. Purva is our expert for today, and she will answer all your questions related to setting up your Etsy shop. Her team has helped hundreds of sellers in setting their Etsy business up for success. And finally, I'm Shani Mukherjee, and I'm part of the community and marketing team, and I'll be moderating the session. I'd like to welcome a very special guest today, Abhinav from the Etsy shop Darshanam. Through Darshanam, Abhinav has helped build more knowledge and awareness about traditional Indian art forms, such as Pichwai, to global audiences. In 2019, our team actually had the privilege of visiting Abhinav's workshop in Jaipur and getting a glimpse of his story and the work that goes behind this art form. So I'd just like to play that video for all of you. मेरा नाम अभिनव बंसल है और मैं पिचवाई पेंटिंग के अंदर काम करता हूँ। ये मेरी 3rd जनरेशन हो गई आर्ट में। मेरे दादाजी श्री राधा मोहन बंसल जी ने ये काम चालू करा था और मेरे जो फादर हैं श्री विजेंद्र जी बंसल, वो एक बहुत अच्छे नामी पेंटर हैं और मेरे को भी उन्हीं से सीखने को मिला है। पिच मतलब पीछे, वाई मतलब हैंगिंग। तो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, विग्रह है, उसके पीछे जो चित्रकारी करके जो डेकोरेशन का कपड़ा लगाते हैं, उसको पिचवाई बोलते हैं। जब 1400 AD के अंदर उदयपुर के पास में श्रीनाथ जी का विग्रह पाया गया, तो फिर नाथद्वारा में मंदिर की स्थापना हुई। उसके बाद 400 साल पहले आर्टिस्टों ने इसको प्रॉपर्ली पेंटिंग को स्टार्ट कर। पिचवाई इसलिए बनाते हैं कि जिससे श्रीनाथ जी की जितनी भी कहानियाँ हैं, वो चित्र के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सके। पहले के ज़माने में मोटे कपड़े पे पिचवाई बनी हुई है, उसको खादी बोलते हैं, कई जगह उसको खद्दी भी बोला जाता है। आज की डेट में हम जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वो 100% प्योर कॉटन ले रहे हैं, बहुत फाइन क्वालिटी का कपड़ा, उसको हम लट्ठा बोलते हैं, जो कि हम नाथद्वारा और सूरत से लेते हैं। पिचवाई पेंटिंग्स बनाने के लिए पहले के ज़माने में नेचुरल कलर्स इस्तेमाल हुए करते थे, जो कि फूल से, वेजिटेबल से और नेचुरल स्टोन से बनाया करते थे। आज की डेट में काफ़ी जगह पोस्टर कलर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बट बेसिकली अगर हम हमारी बात करें तो आज हम उसी प्रोसेस को, जो पहले नेचुरल कलर्स जो बनते थे, उसी प्रोसेस को हम आगे लेके जा रहे हैं और लोगों को टीच भी कर रहे हैं कि नेचुरल कलर्स, पत्थर से नेचुरल कलर हम कैसे बनाएं। हम वही प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। पिचवाई पेंटिंग स्टार्ट करते वक्त हम मेन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ होती है सब्जेक्ट, हमारे माइंड में आता है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ हो गई उनके एलिमेंट्स को हम कहाँ कहाँ दिखाएंगे। तीसरा हो गया कलर स्कीम, कि हम उसमें किस तरीके के कलर्स उसके अंदर इस्तेमाल करें।
ये 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक पिछवाई हम फिर तैयार करते हैं। As much as we enjoyed making the video and meeting Abhinav and his team. With that, I just let you know the agenda for today. So we will be starting with an introduction of Etsy. We will move on to a fireside chat with our seller, and where we will also learn about the process of Pitchway. And after that, we'll move on to our question and answer session from our audience. So a little bit about Etsy. Etsy is a global marketplace for unique and handcrafted goods. We provide creative entrepreneurs with a platform to showcase their work to people from around 80 countries in the world. We are the only marketplace which focuses on creative entrepreneurs, and we help a community of sellers turn their ideas into successful businesses. Our platform connects our sellers with millions of buyers looking for an alternative, something special with a human touch for those moments that deserve imagination. We connect millions of buyers and sellers from nearly every country in the world. Currently, we have 2.8 million active sellers all over the world, selling more than 66 million products to over 47 million active buyers. In a time when automation is increasing so much, it is our mission to keep the human connection at the heart of commerce. And that is why we built a place where creativity lives and thrives, because it's powered by people like you. In 2019, Etsy became the first e-commerce company to offset 100% of carbon emissions from shipping. For every item shipped in our marketplace, Etsy automatically invests in environmental projects to offset the emissions. Since 2019, we have offset over 173,000 metric tons of CO2, which is the equivalent to 20,000 homes' energy for a year, or charging 22 million smartphones. It's not just us as a company who feel responsible to account for our carbon footprint. 90% of our buyers also say that environmental sustainability is important to them. There are 3 major categories of goods that are sold on Etsy. Handmade is anything that you design or make, comes under this category, which is also the biggest category of sale for us. Vintage are items that are at least 20 years old in product age. And craft supplies is anything that can be used to make something new. For instance, materials like fabric, gemstones, and this is also the only category that we allow bulk sales in. Lastly, I want to share some trivia that shows that Etsy is built to encourage entrepreneurship, and entrepreneurs pick Etsy for their journey. You might find it interesting to know that 95% of our sellers work out of their homes, and 53% of our sellers sold their first good on Etsy. 83% of our sellers are also women, and 90% of our sellers are businesses of one. And there's a reason that entrepreneurs pick Etsy. It's because we believe that entrepreneurship begins with you. And that is why all the decisions regarding your shop should be made by you. Starting from the price you want to charge for your products, to the shop policies about shipment, returns, and refunds. We also have a lot of seller services and tools which help you start, manage, and scale your business. Our aim with the Etsy Collective is to build a community of artistic individuals who are curious about Etsy as a platform and want to explore it. We have conducted 98 of these offline and online events, and I want to show you a small video of the Etsy Collective to give you a glimpse of the offline experience and what we have in store for you, hopefully not too far into the future. I think Etsy was one of the first steps I took, which brought my passion out of just being a passion and into something which could give me, actual money. The ease with which anybody today can take any skill they have and monetize that and turn it into a brand, which is amazing. It means that anybody who has a skill can make it more than just a hobby.
not just about selling. Etsy is really about building a community of creative people. And what we've done in India is since last year is that we try through the Etsy Collective to meet with different creative people in different parts of the country. So far we've done about 32 collectives. Almost all the bigger cities we've covered, and now we aim to go to the smaller cities and interact with creative people. It was great, quite informative. It was worth it. It's always good to be around Etsy people and the entire communities. People are very welcoming, and this workshop, everything was good. Thank you. And with that, I will move to the most important part of the session, which is our conversation with our guest. Welcome, Abhinav. Abhinav, the first question that we have is, where did you come up with the idea of Darshanam? आपका inspiration क्या था इस brand के लिए? दर्शनम बेसिकली मीन्स हम जैसे ठाकुर जी के जब मंदिर में जाते हैं तो हम कहते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो और सुबह जब हम उठते हैं तो हम उठने के बाद में नहा धो के जैसे तैयार होते हैं तो सबसे पहले हम भगवान के घर में जो भी मंदिर होता है लोगों के, वहां पर लोग दर्शन करते हैं, थोड़ी देर के लिए डोर लगाते हैं, फिर अपना एक दिन स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ग्रैंड माँ जैसे ही उठती थी तो वो उठते ही ठाकुर जी के हाथ जोड़ती थी और कहती थी सबको पहले दर्शन कर लो भगवान के, फिर अपने दिन की शुरुआत करना। तो ये नाम शुरू से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, दर्शन। और इंडिया में सब लोग, जितने भी लोग जो पूजा करते हैं या मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, कोई भी धर्म के जो लोग हैं, तो दर्शन एक बहुत शुभ और बहुत अच्छा वर्ड है। तो हमने सोचा कि हम श्रीनाथ जी के ऊपर, मेनली हमारा जो वर्क है वो श्रीनाथ जी के ऊपर है, लॉर्ड कृष्णा के ऊपर है और रिलीजियस थीम है। तो क्यों ना हम हमारी जो संस्था है, जो हमारा स्टूडियो है, तो हमने उसका नाम दर्शनम, और ये संस्कृत वर्ड भी है और ये इट साउंड्स वेरी पॉजिटिव एंड वेरी क्यूट, तो हमने इसलिए दर्शनम नाम चुना और इससे हमने ये शुरुआत करी इस नाम से। आपको कैसा लगता है ये नाम सुन के, दर्शनम? एक्चुअली वो सच है, क्योंकि आपका जो थीम है वो रिलीजियस डेटीज के ऊपर उनका थीम है, आर्ट वर्क का, तो नाम ऑफ कोर्स बहुत सेंसिबल, बट ऑल्सो वो आपका जो फैमिली एक कनेक्शन है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है जानने में। तो आपने ऑनलाइन बेचना कब शुरू किया और आपका एक्सपीरियंस एटसी पे कैसा है? हमने ऑनलाइन बेचना, जब एटसी का ऑफिस आया जयपुर में, तो मेरे को जैसे कई बीच में लोग आए थे तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा क्रिएटिव वर्क करते हैं तो आप ऑनलाइन आप इसको सेल करिए। तो बस वो इतना ही बोलते थे, आप ऑनलाइन सेल करिए। कहाँ सेल करें, कैसे करें, वो कभी किसी ने बताया नहीं था। फिर जब एटसी जब जयपुर में आया ऑफिस, तो एटसी के बारे में हमने सुना लोगों से। तो जब ये आया, आई थिंक 2018 में आया, 19 में जब स्टार्टिंग में आप जयपुर में आपका ऑफिस आया, तो वो लोग हमसे मिलने आए। तो उन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट करा। वहाँ पर आपके एक मिस्टर अब्बास जी करके हैं कोई, जिन्होंने मेरे को बहुत बोला कि आपको तो एटसी पे आना ही चाहिए, आपका काम ऐसा है कि आपको यहाँ पर शॉप खोलनी चाहिए, आप खोल के तो देखिए। तो फिर उन्होंने अपने यहाँ पर एटसी पे शॉप खुलवाई। फिर उन्होंने बताया आप ऐसे लिस्टिंग करो, इस तरीके से आप प्रमोशन करो। फिर एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर हम उसके ऊपर डेली ध्यान देने लग गए प्रॉपर तरीके से और वर्क करने लग गए। तो फिर हमारी सेल भी आ गई 10-15 दिन में। तो क्या होता है ना, जब आपकी सेल आती है और आपके पास 2 पैसे आते हैं, नोट आने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। तो फिर हमें लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ बैठे बैठे एक अमेरिका के एक यूएस के बंदे ने हमसे आर्टवर्क खरीदा और उन्होंने इतनी तारीफ करी, जिन्होंने खरीदा उन्होंने इतना अच्छा हमारे को रिव्यू दिया। तो वो ये चीजें देख के हमारे को एक ऐसा मोटिवेशन मिल गया कि हम डबल काम करने लग गए। मतलब हम और ज्यादा काम करने लग गए और क्रिएटिव एक मोटिवेशन मिल गया कि हम और क्रिएशन करें। और ये तो बहुत अच्छा हमारे को प्लेटफॉर्म मिल गया और इतने लोगों से जुड़ने का हमारे को एक तरीका मिल गया यहाँ पर। तो और वी हैव नो वर्ड्स टू थैंक्स एटसी एंड ऑफ कोर्स टू एवरीबडी, आप सब लोगों की टीम को, जिन्होंने जो ऐसा प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है आज की डेट में।
थैंक यू सो मच अभिनव जी. एक्चुअली आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और आपको वहाँ से बेनिफिट हुआ, वो जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है. एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर टेकिंग एन इंडियन आर्ट फॉर्म लाइक पिछवाई ग्लोबल. सो डेफिनेटली मुझे पता है आपके कुछ प्रेजेंटेशन में भी एग्जाम्पल्स हैं और रिव्यूज है, तो डेफिनेटली ऑडियंस के साथ वो भी शेयर करेंगे. लेकिन अगर आपको पिछवाई किन्हीं वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे पिछवाई को डिस्क्राइब करेंगे? पिछवाई क्या है जी? पिछवाई बेसिकली पिच मतलब पीछे, वाई बोलते हैं हैंगिंग को. तो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथद्वारा में, लॉर्ड कृष्णा का जो टेम्पल है, तो बेसिकली 400 साल पहले इसकी जो शुरुआत हुई है पिछवाई की, वो करीब 401 साल पहले हुई है. तो तब उस वक्त उस जमाने में आर्टिस्टों ने कपड़े के ऊपर पेंटिंग बना के, जो उसमें इसमें क्या होता है पिछवाई में, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा हो गए, श्रीनाथ जी हो गए, इनकी स्टोरीज को दिखाया जाता है पेंटिंग के माध्यम से, थ्रू द मीडियम ऑफ आर्ट वर्क. तो उनकी स्टोरीज, उनके जो नरेशंस हैं, उनकी जो लाइफ है, वो हम इसमें दिखाते हैं. उनके जो दर्शन हैं अलग अलग, उनकी जो झांकियाँ है, तो ये क्या है, भगवान की जो विग्रह है उसके पीछे टांका जाता है कपड़ा, तो उसको पिछवाई बोलते हैं. तो ये बेसिकली मंदिर में पहले ज्यादातर लगती थी, लोग मंदिरों में पहले लगाते थे पिछवाई, क्योंकि भगवान की जो मूर्ति है उसके पीछे हैंग करते थे उसको. तो अब धीरे धीरे लोगों के ये घर में आने लग गई, लोग घर के मंदिरों में भी इसको लगाने लग गए. अब लोग इसको ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, मतलब अब इट हैज बिकम अ वेरी पॉपुलर पिछवाई. तो काफी घरों में, इवन मॉडर्न हाउसेस में भी बहुत लोग पिछवाई को लगा रहे हैं. ड्राइंग रूम के अंदर लोग कस्टमाइज करवाते हैं हमसे कि हमारी ये वॉल है, इसके लिए आप कृष्ण थीम के ऊपर, श्रीनाथ जी की थीम के ऊपर कुछ अच्छी सी पिछवाई हमारे लिए बनाइए. तो हम सोचते हैं कि हम क्या बनाएं, तो हम उनके लिए एक डिजाइन करके और अच्छी सी एक थीम सजेस्ट करते हैं उनको, फिर वो पसंद करते हैं, फिर उस साइज के अनुसार हम बना देते हैं उनको. तो बेसिकली अब पिछवाई काफी लोग घरों में, अपने मॉडर्न घरों में भी काफी पिछवाई चल रही है. इट इज वेरी इन नाउ डेज. एक्चुअली उसी बात पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि लोगों का पर्सपेक्टिव ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स की तरफ चेंज हो रहा है इंडिया में और ग्लोबली भी, क्योंकि आपकी ऑडियंस इंडिया और ग्लोबली दोनों में है, तो आपको कैसे लगता है लोगों का पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो रहा है अभी? लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसे चेंज हो रहा है जी, मैं आपको बताऊं. जैसे पहले अपन घर होता क्या था, किसी टाइम पे लोग घर ले लेते थे, घर लेने के बाद में आदमी सोचता है कि भाई अपन फर्नीचर वगैरह डाल लेंगे और कारपेट वगैरह डाल लेंगे, कर्टेन्स वगैरह लगा लेंगे. अब आज की डेट में लोग सोचते हैं आर्ट, हम वॉल्स को क्यों खाली रखेंगे, व्हाई शुड बी कीप द वॉल्स एम्प्टी. तो देयर शुड बी आर्ट वर्क ओवर देयर. इनफैक्ट आपकी और हमारी जो एज है, जो यंग जनरेशन है और जो कमिंग जनरेशन है, उन लोगों का बहुत इंटरेस्ट है आर्ट में. दे डोंट वांट टू कीप द वॉल्स एम्प्टी. हम जब कभी किसी क्लाइंट के घर पे जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं, डैडी दिस वॉल इज एम्प्टी, व्हाई डोंट यू थिंक समथिंग टू पुट अप हियर आल्सो. तो ये देख के हमारे को बहुत अच्छा लगता है. तो अब लोगों का रुझान आर्ट की तरफ काफी अच्छा बढ़ रहा है. और इसके अंदर जैसे एटसी है, आपका जो प्लेटफॉर्म है, ऑनेस्टली इसका बहुत बड़ा योगदान है. क्योंकि जब तक लोग जब तक चीजों को देखेंगे नहीं, तब तक वो उसकी उनको ये समझ नहीं आएगा कि इसका हम यूज क्या करें. अब लोग देखते हैं कि लोग इस तरीके से भी हम घर को डेकोरेट कर सकते हैं, ये पेंटिंग भी हम यहाँ लगा सकते हो. ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म क्या है, ये इंडिया का रूट है, ये जड़ है इंडिया की, जो जहाँ से ये आर्ट, ये ओरिजिन आर्ट है इंडिया का. तो ये लोग, अब इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से. तो लोगों में काफी इसकी अवेयरनेस हो रही है और वो ट्रेडिशनल आर्ट को वापस रिवाइव कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि हमारे को ट्रेडिशनल आर्ट को वापस हमारे घरों में लेके आना है. और इसके जो आर्टिस्ट है वो भी बहुत कम हो गए थे, बहुत कम, क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं था पेंटिंग. और पिछवाई आर्ट एक टाइम पे बिकनी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि बहुत कम लोग खरीदते थे, सिर्फ मंदिरों में लगती थी, तो इतनी बिकती नहीं थी. फिर धीरे धीरे जब लोगों में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे वापस अब इसके आर्टिस्ट थोड़े और आने लगे. आपका एक्चुअली लाइक आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस आल्सो टू डेफिनेटली चेक आउट द दर्शनम स्टोर, बिकॉज जैसे अभिनव जी ने
पिछवाई आर्टवर्क को कंटेम्प्रेरी वे में प्रेजेंट किया है, it is really something to see and something to learn from. I think, I mean, in general, आपका जैसे presentation भी है, that goes a long way in changing people's perspective about वो painting कहाँ पे fit हो सकता है उनके घर में. It is not just for, you know, religious purpose, but actually a beautiful, modern, traditional decor item. Thank you. अरुण जी, आपके फैमिली में आप कैसे आप अपने यंगर जनरेशन को इंटरेस्टेड करेंगे कि वो भी पिछवाई आर्ट फॉर्म फॉलो करे और वो इस फैमिली बिजनेस में कंट्रीब्यूट करे? तो आपका अभी जनरली यंगर जनरेशन का इंटरेस्ट कितना है और आप कैसे उसको इंक्रीज करते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल करा है और मेरे को आपका सवाल देख के मजा आ गया। मेरी डॉटर को पता था कि मैं आज अपना यहाँ पर सेशन है पिछवाई का आपके साथ में, तो वो मेरे को सुबह ना वो ट्यूशन पे जाती है तो वो बना के मेरे को देना भूल गई। तो उसने अभी ये मेरी डॉटर ये पिछवाई बना के उसने अभी मेरे को व्हाट्सएप करा है, वो ड्राइंग कर रही है। तो वो मेरे को देखते देखते और हमारी फैमिली को देखते देखते ऑलरेडी हमारे ब्लड के अंदर इतना आ गया है कि जैसे मेरे स्टूडियो में मेरी डॉटर है, शी इज नाउ 8 इयर्स, तो वो आती है एंड माय सन, तो वो ही इज 6 इयर्स ओल्ड, तो वो आते हैं तो वो मुझे उनको बड़ी मुश्किल से लेके जाना पड़ता है स्टूडियो से। वो कलर ब्रश और पेपर छोड़ते ही नहीं है। तो ये हमारे ब्लड के अंदर है। प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी अभी तो जैसे कोविड में बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम जितने भी स्कूल्स हैं हम वहाँ पर जाके बोलते थे प्रिंसिपल्स को कि आप बच्चों को हमारे स्टूडियो पे लाइए, हम उनको एक पिछवाई आर्ट का जो हमारे इंडिया का ट्रेडिशनल आर्ट है उसका एक गाइडेड टूर देना चाहते हैं और हम उनको बताना चाहते हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान का आर्ट है और ये कैसे बनता है, कलर्स कैसे बनते हैं, हम उनको एक सिखाना है। क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, तो आपको बस उनको एक हिंट देना होता है, आइडिया देना होता है, फिर वो अपने आप सीखने लगते हैं, उनके अंदर एक अपने आप एक रुचि पैदा हो जाती है। तो हम स्कूल अलग अलग स्कूल के बच्चों को संडे को, सैटरडे को, जब भी उनको टाइम होता है 1 घंटे 2 घंटे के लिए हम हमारे स्टूडियो पे बुलाते हैं, उनको पिछवाई का हम पूरा एक गाइडेड टूर देते हैं और फिर वो बच्चे वहीं बैठ के पेंटिंग बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि कितनी रुचि इन बच्चों में है, यंग जनरेशन में। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि वो लोग भी लर्न करें, ये आर्ट को लर्न करें और फिर इसके हिसाब से जैसे जिसके अंदर जितना इंटरेस्ट होगा वो उसको आगे लेके जाएगा। अमेजिंग, इट इज अमेजिंग टू नो कि आपकी यंग जनरेशन कितनी इंटरेस्टेड है और इतने यंग एज में आई एम श्योर दे विल कम एंड जॉइन द बिजनेस एंड ग्रो इट फर्दर। तो अवनर जी, हमने कुछ जैसे आपके वीडियो में भी एग्जांपल्स देखे आर्ट फॉर्म के, एंड पिछवाई आर्ट इज ब्यूटीफुल, बट कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट द प्रोसेस बिहाइंड द आर्ट? पिछवाई प्रोसेस के लिए क्या होता है, पिछवाई के लिए सबसे पहले हम माइंड में एक थीम डिजाइन करते हैं कि हमें श्रीनाथ जी को कि क्या स्टोरी उनको हमें दिखानी है। आप खोलिए यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन। तो पिछवाई के अंदर सबसे पहले हम एक थीम सोचते हैं, जैसे गोपाष्टमी हो गई या राधाष्टमी हो गई या अपना श्रृंगार हो गया, 56 भोग हो गए। तो जो इनके श्रीनाथ जी के जो दर्शन है, जैसे अपन अन्नकूट पे के दर्शन करते हैं, कई तरीके के भोग लगते हैं, तो उसका एक दर्शन है। तो वैसे हम पहले ड्राइंग बनाते हैं, एक थीम दिमाग में रख के। ये ऐसे हम ड्राइंग पहले हम कागज पे या कपड़े के ऊपर पूरी ड्राइंग हम ऐसे ड्रॉ करके एक थीम तैयार करते हैं। कमल तलाई हो गई कि जैसे कमल के बीच में, फिर हम ये जो स्टोन्स का जो प्रोसेस है स्टोन कलर बनाने का, ये नेचुरल स्टोन से होता है। मैंने कुछ यहाँ रखे मेरे पास में आपको, ये नेचुरल स्टोन है, ये लैपिस स्टोन है ब्लू कलर का, लैपिस लाजवरत बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर इसको हम पाउडर बनाते हैं, उसके बाद में अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो ग्राइंड करते हैं हम खरल के अंदर। नेक्स्ट वाली इमेज लाइए जरा ईशानी जी। राइट, ये वाली जो आप खरल देख रहे हैं, इसको हम ये जो स्टोन के जो ये पीस रहे हैं, ये खरल बोलते हैं इसको हम। इसके अंदर हम ये स्टोन को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं
इस प्रोसेस में करने में हमारे को 15 दिन लगते हैं। फिर ये जब पेस्ट बन जाता है इस पे लगाते हैं और फिर हम ये नेचुरल कलर हम पेंटिंग में लगाते हैं। एक कलर बनाने में हमारे को 15 से 20 दिन लगते हैं, वन कलर। तो एक पेंटिंग के अंदर कई सारे कलर्स बनते हैं और वो अलग अलग स्टोन से बनते हैं। जैसे नीला बनता है लैपिस लाजुली से, येलो कलर पेवड़ी से बनता है, व्हाइट कलर जो होता है वो एक अलग स्टोन से बनता है, खड़िया बोलते हैं उसको, खड़िया पत्थर होता है। तो ये अलग अलग कलर्स हैं जो अलग अलग पत्थर से बनते हैं। फिर हम इनको बना के रेडी करते हैं और पेंटिंग के अंदर हम जो गम हम क्या करते हैं, कलर में एक थोड़ी सी मात्रा में एक गम यूज करते हैं, गोंद बोलते हैं उसको हम, वो भी हम खुद बनाते हैं। बबूल के पेड़ से जो टहनी होती है उससे हम गोंद बनाते हैं, गम। तो ये जो प्रोसेस होता है, और फिर जो पेंटिंग जब बनाते हैं तो हम ये गिलहरी की जो ब्रश आती है, ये गिलहरी की ब्रश है, स्क्विरल के हेयर होते हैं, उनसे ये ब्रश बनती है और उससे ये पूरी काम होता है। फिर हम पेंटिंग स्टोन कलर अपने बन गए, ड्राइंग अपनी हो गई, उसके बाद में फिर हम कलर्स जो है इस ब्रश से हम यूज करते हैं। तो ये कलरिंग अपना प्रोसेस हो गया। कलर ये वाला जो काम आप देख रहे हैं काउस के अंदर, थोड़ा पीछे करिए, यहाँ पर ये पूरा गोल्ड वर्क है। ये गोल्ड जो है हम रियल गोल्ड यूज करते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये रियल 24 कैरेट जो गोल्ड आता है उसको, उससे ये पूरा ये रियल गोल्ड कहलाता है। इसका क्या होता है, लीफ होती है, गोल्ड लीफ। जैसे सिल्वर लीफ आती है बाजार में, आप देखते होंगे। और जैसे गणेश चतुर्थी पे अपन गणेश जी पे लगाते भी हैं सिल्वर लीफ, तो सिल्वर फॉइल रियल सिल्वर की बनी होती है फॉइल। वैसे ये गोल्ड फॉइल होती है, 24 कैरेट रियल गोल्ड से बनी होती है। तो ये फॉइल हम पेंटिंग पे लगाते हैं। इसका एक प्रोसेस होता है कि जहाँ पर हमें जहाँ पर हमारे को गोल्ड लगाना है, वहां पर हम जो गम हम बनाते हैं गोंद, वहां पर हम पहले वो लगाते हैं हल्का सा, और फिर उसको थोड़ी देर छोड़ते हैं कि वो थोड़ा सा हम एक लेवल देख लेते हैं कि अब ये गोल्ड को पकड़ सकता है, कपड़ा या पेपर जो भी है। फिर हम वो गोल्ड की फॉइल उस जगह पे उतना सा गोल्ड की फॉइल को हम काटते हैं और काट के उस जगह पे लगाते हैं, तो वो फॉइल वहां पर चिपक जाती है। तो ये इसका एक प्रोसेस है। जैसे आप इसमें देख, सिल्वर एंड गोल्डन काउज है इस वाली पेंटिंग में, तो इसमें सिल्वर और गोल्ड पूरा रियल यूज करा हुआ है, और ये पूरा इस प्रोसेस से हमने ये पूरा काम करा हुआ, गोल्ड एंड सिल्वर। ये देख रहे हैं आप, श्रृंगार जो है श्रीनाथ जी के, मुकुट है और जो माला है, मोती है, ये सारा पूरा रियल गोल्ड के अंदर काम जो है, ये पूरा रियल गोल्ड के अंदर करा। फिर ऐसे ये कंप्लीट पेंटिंग कलरिंग और शेडिंग वगैरह पूरा करने के बाद में ये पेंटिंग पूरी ऐसे तैयार हो जाती है। फिर हम तैयार होने के बाद में ये कपड़े को हम बोर्ड से हटा लेते हैं। पहले हम जब अगर क्लॉथ पे काम करते हैं तो क्लॉथ को हम बोर्ड पे चिपकाते हैं, फिर पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद कपड़े को बोर्ड से हटा लेते हैं। तो ये और ये फ्रेम करके ये पेंटिंग हमने दिखाई है, ये और ये फ्रेम होने के बाद में ये पेंटिंग का ये प्रॉपर लुक अपना आ जाता है। ये जो राइट वाली, इसमें जो श्रीनाथ जी वाली जो पेंटिंग है ये कपड़े पे है। और फिर हम जो ये जो पेंटिंग में आप देख रहे हैं बॉर्डर वगैरह, ये जैसे बॉर्डर है तो ये श्रीनाथ जी की थीम के अनुसार हम लेते हैं कि श्रीनाथ जी के ये पंडे हैं जो पूजा कर रहे हैं श्रीनाथ जी की, और ये श्रीनाथ जी का पूरा श्रृंगार करा हुआ है। और इस पे हम अलग अलग तरीके की, जैसे इसमें हमने जो बॉर्डर दी है तो ये हमने एक थीम ली है कि अपन कमल तलाई, जैसे श्रीनाथ जी को, लॉर्ड कृष्णा को कमल के फूल का बहुत शौक था, तो वो कमल के फूल आज हम पूजा में रखते हैं श्रीनाथ जी के, कृष्ण के। तो ये बॉर्डर में जो फूल है, कमल है, और ये जो गोल्ड का काम है, ये सब चीजों को हम, उनके जो एलिमेंट्स हैं श्रीनाथ जी के, उनको हम एक अलग अलग तरीके से यूज करके और बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो थीम है उसको हम ट्राई करते हैं कि हम श्रीनाथ जी को हम अलग अलग तरीके से, हम कितने रूपों में और कितनी स्टोरीज को अलग अलग तरीके से हम दिखा सकते। फिर फाइनली पेंटिंग जब तैयार हो जाती है उसके बाद में ये हमारा पैकिंग प्रोसेस होता है। हम जैसे ये कपड़े की पेंटिंग है, क्लॉथ पे है, तो ये हमारा पहला स्टेप होता है। हम पेंटिंग को एकदम पूरा नीट एंड क्लीन हम देखते हैं, कोई दाग धब्बा उसमें नहीं रह रहा है,
एकदम नीट एंड क्लीन है, कलर सब जगह अपनी जगह एक्यूरेट है। पूरा करने के बाद में फिर हम उसको अच्छे से एक पाइप के अंदर हम उसको रोल करते हैं। फिर हम एक पाइप लेते हैं उस साइज का काट के, जिस साइज की पेंटिंग है। उसके बाद में सेकंड स्टेप हमारा होता है, हम उस पर बटर पेपर लगाते हैं। बटर पेपर लगाने के बाद में हम थर्ड स्टेप में उसको रोल कर देते हैं। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में हम उस पर बबल लगाते हैं, बबल रोल, जो प्लास्टिक का जो रोल होता है। कल को मान लो पानी अगर लगता है या कुछ लगता है तो पेंटिंग अपनी डैमेज नहीं होगी, वो सुरक्षित रहेगी। और फिर हम उसको प्लास्टिक के थिक पाइप के अंदर डाल के अच्छे से पैक कर देते हैं, जिससे कल को अगर कोई वजन भी उसके ऊपर पड़ता है तो वो पेंटिंग को डैमेज ना करेगी, क्योंकि ये पाइप अच्छा एक थिक पाइप होता है प्लास्टिक का। इसके अंदर पेंटिंग एकदम 100% सेफ रहती है। और जितने भी कस्टमर्स को आज तक हमने जो भी पाइप के अंदर रोल करके पेंटिंग भेजी है, तो टचवुड आज तक कभी भी हमारे को ऐसी कोई डैमेज की शिकायत नहीं आई और लोग बड़े खुश हुए और बहुत सेफली पेंटिंग उनके पास में पहुंची। और ये हम हमारे दर्शनम आर्ट का एक सर्टिफिकेट लोगों को देते हैं कि इसके अंदर जो भी काम हमने करा है, जो भी आर्ट वर्क हमने बनाया है, उसकी पूरी डिटेल इसके अंदर मेंशन होती है कि वो कहीं पे बना है, कौन से कलर्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, रियल गोल्ड इस्तेमाल हुआ है क्या, हर पूरे इसके अंदर एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन होता है। ये सर्टिफिकेट आपके लिए लाइफ लॉन्ग एक तरीके का, आप प्रॉपर्टी लेते हो तो आपके लिए, आप प्रॉपर्टी लेते वक्त आदमी को लगता है कि मैं कागज मेरे पास है कि नहीं है। आज आप ज्वेलरी भी खरीदते हो तो आप सोचते हो मेरे पास उसका बिल है कि नहीं है। तो ये हमारी पेंटिंग का ऑथेंटिसिटी है, हम रहें या नहीं रहे। हमारी आगे की पीढ़ी भी को भी अगर आप ये दिखाएंगे तो बोलेंगे हाँ ये दर्शनम आर्ट से ली हुई है, दिस इज द ऑथेंटिक वर्क। तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सर्टिफिकेट हम इसलिए देते हैं कि सामने वाले को एक संतुष्टि रहे कि उन्होंने एक जेन्युइन स्टूडियो से काम खरीदा है और एक जेन्युइन आर्ट वर्क है। इट इज प्योरली हैंडमेड एंड वॉट एवर डिस्क्रिप्शन, वॉट एवर डिटेल्स is mentioned in the certificate is completely genuine and authentic. ये प्रोडक्ट्स हम जो बना रहे हैं, ये हमारे को, इसके लिए हम ITC को बहुत थैंकफुल देंगे, बहुत थैंक्स देंगे, क्योंकि ये आइडिया हमारे को 1-1.5 साल पहले ही आया। हमें लगा लोग इतना क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि ITC को आने के बाद में हम काफी मोटिवेट हुए और हमारे को लगा कि हम हमारे काम को और आगे कैसे बढ़ाएं, इसके अंदर हम और क्रिएटिविटी कैसे लाएं। तो हमें लगा कि सिर्फ कपड़े के ऊपर, पेंटिंग के ऊपर ही क्यों, हम हमारी आर्ट को हम और चीजों पे भी दिखाएं। तो ये बॉक्स, लकड़ी का जो बॉक्स है, ये मल्टीपर्पज बॉक्स है। लोगों के घर में लोग कुछ भी इसमें सामान रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं या डेली यूजेबल कीज रख सकते हैं या कुछ भी, मल्टीपर्पज बॉक्स है। तो इसके ऊपर भी हमने एक पेंटिंग कर दी। तो ये सिंपल लकड़ी का बॉक्स जो बाजार में बिकता है, तो हमने इसको थोड़ा सा हमारे हिसाब से डिजाइन करके बनवाया कारपेंटर से, और हमने इसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई। तो लोगों को ये बड़ा पसंद आया। तो हमने इसके अंदर अभी और डिजाइन हम बना रहे हैं। और ये बोल जो है, इसको भी हमने कलर हैंड पेंटेड करके बनाया है। और इसके अंदर हमने जो कलर्स यूज करे हैं बोल के अंदर, क्योंकि ये वॉश, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा वॉश करने के काम आएगा, तो ये कलर्स आपके इसमें खराब नहीं होंगे। आप इसको पतले कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इवन यू कैन पतले वेट क्लॉथ से आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, तो भी इसके कलर को कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये वाटरप्रूफ कलर्स हैं जो हमने क्योंकि ये मेटल का है बोल, तो मेटल के ऊपर वही कलर हम लगा सकते हैं जो उसके ऊपर सस्टेन करेगा लॉन्ग लाइफ आगे के लिए। तो इसलिए हमने इसके अंदर एक डिफरेंट कलर्स यूज करे हुए हैं। बाकी सबके अंदर हमारे स्टोन कलर्स। ये ट्रेस हम बना रहे हैं, वुडन ट्रेस, क्योंकि इसमें ये काफी मल्टीपर्पज यूज आती है घर में। आप ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम टेबल में लोग रख लेते हैं। इसके अंदर कुछ टॉवल्स वगैरह भी आप रोल करके इसमें रख सकते हैं, बड़े सुंदर रखते हैं। और ये मल्टीपर्पज है, आप इसमें कुछ क्रॉकरी रख सकते हैं। और इसके अंदर लोग मंदिर वगैरह जाते हैं पूजा करने, तो इसके अंदर फूल वगैरह भी रख के लेके जाते हैं। तो ये जो ट्रे है, ये भी हम इस तरीके के काफी प्रोडक्ट हैं, जैसे ट्रे हो गया, बोल हो गया, बॉक्स हो गया। तो इस तरीके की चीजें हम अभी और डिजाइन कर रहे हैं। और इसके ऊपर ये पूरा हैंड प्रिंटेड हमने करा है। कुशन्स जैसे आपने दिखाए थे, और डायरीज हैं, ये प्रिंटेड है। ये डायरी के ऊपर हमने प्रिंट करवाया है हमारी पेंटिंग को।
तो ये जो डेली यूज में लोग काम में लेते हैं डायरीज वगैरह, तो ये जैसे ये मेरी डायरी है, डेली डायरी, तो इसको मैं, ये हमारे पिछवाई जो हमारी पेंटिंग है उसी से रिलेटेड है। ये पेंटिंग मैंने डिजाइन करी है और ये इसको फिर हमने प्रिंट करवाया इस पे किताब के ऊपर। तो ये जो है ये लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, बुक्स वगैरह ये हैंडमेड, क्योंकि डेली डायरी हर आदमी रख, एक तरीके की ये डिजाइनर डायरी भी हो गई अपने आप में, और ये हमारी थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दर्शना मार्ट। तो ये अपनी पेंटिंग से रिलेटेड और कृष्ण थीम से रिलेटेड ही हमने ये डिजाइन करी है। कहीं भी बैठ के अपना काम करेगा तो उसका काम आज नहीं तो कल आगे जाके कहीं ना कहीं बोलेगा जरूर। ये पिछवाई पेंटिंग को प्रमोट करा है और उसके लिए हम इनको बहुत थैंक यू देते हैं कि आपने हमें मौका दिया है शो में आने का। थैंक यू सो मच अभिनव जी, आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स कि आप आए और हमारे साथ अपना पूरा स्टोरी और आर्ट फॉर्म का हिस्ट्री और आपने आपके फैमिली बिजनेस का हिस्ट्री हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। आपका वीडियो थोड़ा सा, आई थिंक वीडियो और ऑडियो थोड़ा सा पैची था, बट आई होप दैट द ऑडियंस कुड सी मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, स्पेशली आई थिंक लास्ट पार्ट में जहाँ पे आपने वो स्कूल कंपटीशन की बात की, जिससे आई मीन आई थिंक बियॉन्ड आपके, मतलब वो आपके बिजनेस के बियॉन्ड है, वो एक्चुअली अबाउट रिवाइविंग द आर्ट फॉर्म एंड मेकिंग द आर्ट फॉर्म पॉपुलर अक्रॉस जनरेशंस। तो उसमें भी आपका जो काम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक आई विल, अब मैं सारे जो ऑडियंस क्वेश्चंस हैं उनको कुछ ऑडियंस क्वेश्चन देती हूँ, क्योंकि हमारा सेशन में हाँ डेफिनेटली 10 से 15 मिनट है अभी भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभिनव जी, मोनिका आर्या पूछ रही है, वो पूछ रही है कि वो कैसे बायर्स को समझाए कि ये आर्ट फॉर्म के पीछे कितना एफर्ट जाता है और उनको रियल वैल्यू एक्सप्लेन करे, क्योंकि अभी आपको ही बताओ कि जैसे मार्केट में कितने सारे लोग इमिटेशंस करते हैं जो नॉट एक्चुअल नेचुरल कलर, जैसे आपने बोला कि 15 दिन लगते हैं वो नेचुरल कलर्स बनाने में। तो आप कैसे एक बायर को समझा सकते हैं कि रियल वैल्यू क्या है ओरिजिनल आर्ट फॉर्म का? अगर एक आर्टिस्ट हैं, आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, और हम ये कहना चाहेंगे कि आज बहुत से लोग मार्केट में प्रिंट भी लेके लगाते हैं, जो मशीन से प्रिंट निकलता है वो भी लेके लगाते हैं, वो उसके भी बायर्स हैं, और वो भी बायर्स हैं जो ओरिजिनल आर्टवर्क लगाना चाहते हैं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी करते रहिए, आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि कोई आपकी आर्ट को समझ पा रहा है या कम समझ पा रहा है या ज्यादा समझ पा रहा है। आपका योर वर्क विल स्पीक, यू डोंट हैव टू स्पीक। आज हम जो पेंटिंग बना रहे हैं, जब हमारा काम, आज मैं अगर मेरे काम की तारीफ करूंगा कि ये पेंटिंग ऐसी है, ये पेंटिंग वैसी है, तो लोगों को लगेगा ये तो अपने माल की तारीफ करेगा, ये करेगा भाई, सीधी सी बात है। तो हमारा मकसद काम की तारीफ करना नहीं होता, हमारा मकसद होता है हम बहुत डेडिकेटेडली काम को इतना अच्छे तरीके से करें कि जिसके पास वो काम जाए, भले एक आदमी खरीदेगा, पूरे साल में आपका ने एक ही बायर ने काम खरीदा, बट उससे हमारे 100 बायर पैदा होंगे अगर हमारे काम में दम है तो हमारा जो आर्ट है दैट विल स्पीक। तो ऑटोमेटिकली जो बायर्स हैं उनके रिव्यूज विल, वो जो आपको रिव्यू दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ जेन्युइन ऑर्गेनिक रिव्यू जो आपको मिल रहे हैं। सो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या होगा कि एक जेन्युइन बायर आपके लिए लिख रहा है आपके काम के लिए और उसको पढ़ के 10 लोग और खरीद रहे हैं। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है, बस जो बायर्स है वो बोलेंगे आपके लिए। थैंक यू। मैं बस चैट बॉक्स देख रही थी और मैं आपको अतुल, आशा, अंकिता सबके कॉम्प्लीमेंट्स आपको कन्वे करना चाहती है। सबने बोला है कि आपके प्रेजेंटेशन से आई थिंक उन्होंने सबने बोला कि कितना ज्यादा इंट्रिकेट आर्ट वर्क है, और उन्होंने बोला कि दर्शन की स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनव जी है, भावना बत्रा इज आस्किंग, how can one set up their Etsy shop for organic masks
and what is the process of connecting with new customers? I'm sorry, आप एक बार repeat करेंगे question? Sorry, अभिनव जी, ये एक्चुअली पूर्वा हमारी टीम जो है वो सेलर ऑनबोर्डिंग टीम से है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन है वो एटसी प्लेटफॉर्म का, तो मैं उनको बोल रही हूँ। पूर्वा, अगर आप अपना वीडियो और ऑडियो Yeah, hi. Hello, hi Purva. Hi. So yeah, can you just repeat the questions one more time, please? Bhavna is asking, I'm planning to set up an Etsy shop for my venture of organic mask. What are the first steps that I can take to set up my shop on Etsy? Okay, so first of all, it's a very simple procedure. Don't have to do much. You just have to go to the website and register there. It's a 5-step process. For that, you just need a basic, requirements. And once you're registered on the website, it's very important to list your products properly there. If you've added proper tags to your products, proper titles, you put the products in proper categories, you will get a good number of views and visits in your shop. That's how you can, that's the initial stage where we start getting views and orders. Thanks. There's another question, I'll take it now only. Yeah. Muta is asking, what are the listing prices? So I think if you can just give a brief about the pricing structure. And yeah, so the pricing is very simple. So you just have to pay listing amount initially, that is 20 cents, and in Indian rupees, if we convert it, that will be around 13 to 15 rupees. But to promote Indian sellers and artists, Etsy initially provides them with 30 listings. So you don't have to pay any listing charges initially or any registration charge. Just go to the website. If you register through us, through Etsy, acquisition team, we'll provide you with 30 free listings initially. You don't have to pay for them, and for these 30 listings will be live for the next 4 months, so that you can just see without investing anything what kind of response you're getting here. If you like the response, then you can just renew the listings after 4 months, and the charges are the same, 20 cents. I think someone is also asking, does Etsy help with shipping, or what is the process to ship the products? So Etsy provides their sellers complete freedom to go for any logistics, any courier company, whichever is nearest to them. You can coordinate with any of your nearest courier offices. You can partner with them. They'll help you with the shipment, because it will be better, because you know your products better. You'll have to package your product, like Abhinav sir just mentioned, that they pack their products properly. So you know your products better. So you can just coordinate with the nearest courier offices, just talk to them, they'll help you with the shipment and the packaging also. Perfect. Thank you, Purva. Yeah. Abhinav ji, और कुछ questions, I think मैं last शायद से 2 questions ले सकती हूँ. एक question है Anuja से, what are the key points of running a business, handicraft business? तो आपके कौन से सबसे ज़्यादा important teams हैं आपके business में? क्योंकि art form के अलावा भी, जैसे अगर shipping, marketing अगर ऐसे कुछ करते हैं, creative process के अलावा और कौन से parts आपके business में जो important है एक handicraft business run करने में? देखिए, सबसे important बात आपने करी है कि आज कोई भी क्रिएटिव बंदा है, क्योंकि आदमी का समय, जो एक काम करने वाला बंदा है, उसका आप कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हो, यू आर एन आर्टिस्ट और यू आर ए क्राफ्ट पर्सन, व्हाट्सएवर, तो आपका पूरा दिन उसमें निकल जाता है. तो आपको लगता है कि मैं काम तो कर रहा हूँ, मैं कुछ बना रहा हूँ, बट मैं इसकी मार्केटिंग कब करूँ, कैसे करूँ, इसके लिए टाइम कब निकालूं, मार्केट में कहाँ जाऊँ बेचने, ये सारी ये चीज़ों के लिए एक आदमी के एक उसको लगता है मैं बना रहा हूँ, तो फाइनली ये लोगों तक पहुँचेगा कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के मन. तो ये जैसा मैंने बताया कि Etsy, मुझे ऐसा लगता है कि आज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, बट ऑनेस्टली Etsy ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है. एक रियल आर्ट को आप लोग जो Etsy, एक रियल आर्टिस्ट, रियल क्राफ्टमैन, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बना ही आर्टिस्टों के लिए है, और इसमें लोग जो बायर्स हैं वो इतना अच्छे से आपसे कम्युनिकेट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं. तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत हेल्पफुल है आपकी क्रिएटिविटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए. नहीं तो आपकी क्रिएटिविटी लोगों तक कैसे पहुंचेगी
जब एटसी पे हम नहीं थे तो हम हमारे माउथ पब्लिसिटी से या वर्ड ऑफ माउथ से जो लोग हमारे को सिर्फ जानते थे, सिर्फ उनके थ्रू ही हमारे पास कस्टमर आ पाते थे। अब एटसी पे आने के बाद में हमारे पास यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, कितनी जगह से क्लाइंट्स आने लग गए, उन्होंने इतने ऑर्डर दिए। मतलब जितनी पेंटिंग हमने 5 साल में नहीं बेची उतनी हमने 1 साल में बेच ली एटसी पे। Wow, that's amazing. Very, very, very inspiring success story. हाँ। Last question, अभिनव जी। कविता भी पूछ रही है और ये कृति सोनी ने भी पूछा है कि आपको क्या लगता है पिछवाई आर्ट का फ्यूचर क्या है इंडिया में और ग्लोबली, और आपका क्या सेंस है और आप कैसे उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? पिछवाई आर्ट का जो फ्यूचर है वो नॉट ओनली पिछवाई आर्ट, कोई भी ऐसा आर्ट जो ट्रेडिशनल आर्ट है, जो आपके ट्रेडिशन को शो करता है, वो हमेशा आगे जाएगा। क्योंकि लोग कितने भी मॉडर्नाइज हो जाएं, कितने भी मॉडर्न हो जाए, आदमी अपनी पुरानी यादें और जो रूट्स हैं उनको जिंदगी में नहीं भूल सकता। जैसे हर आदमी का एक फैमिली का ट्री होता है, ये मेरे परदादाजी, ये मेरे दादाजी, आदमी वो कहानियां जरूर अपने जो फैमिली के किस्से हैं वो जरूर सुनता है कि मेरे दादाजी ये करते थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वाज दिस, उन्होंने ऐसा करा उस जमाने में। तो वैसे ही ये आर्ट जो है ये हमारे रूट्स हैं, इसको ये हमेशा आगे बढ़ेंगे। आपको भी इनको लेके आगे जाना है और ये भी आपको लेके आगे जाते हैं। सो ये एक दूसरे को आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये जो आपका जो कंट्री का आर्ट है, भले वो कोई सा भी आर्ट हो, किसी भी कंट्री का आर्ट हो, ट्रेडिशनल आर्ट इज ऑलवेज, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट, और वो आगे हमेशा बढ़ेगा। बल्कि हम जैसे उसके अंदर एक नई क्रिएटिविटी लाना चाह रहे हैं कि हम इस आर्ट को आगे बढ़ाएं और इसके अंदर एक नई चीज और क्रिएट करें, एक नए एड ऑन करें, कुछ ना कुछ हम हमारी क्रिएटिविटी से इसको दिखाएं। तो ये इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और स्पेशली मैं बात करूंगा पिछवाई पेंटिंग की, तो टचवुड पिछवाई पेंटिंग तो अभी पिछले कुछ सालों में इतनी पॉपुलर हो गई है और जितने सेलिब्रिटीज अराउंड द वर्ल्ड वो पिछवाई पेंटिंग ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है और बहुत सुनहरा अवसर है कि हम पिछवाई काम को और आगे बढ़ाएं। Thank you so much. I think that was the perfect answer and thoughts to end this session with. I thank each and every one of you for being part of the Small Talk session with the Etsy Collective. Do tell us. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Abhinav ji, of course, our guest of honor. Thank you so much for being part of this event and sharing. और हम आप सबको हमारे स्टूडियो पे इनवाइट करना चाहेंगे जब भी ये कोविड जल्दी ऊपर वाला करे, जल्दी ये कोविड से लोग फ्री हों, तो आप सब लोग कभी भी जयपुर आएं तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट आवर स्टूडियो। हम आपको लाइव पूरा पेंटिंग बना के दिखाएंगे और आपको वी आर श्योर कि आपको बड़ा आनंद आएगा हमारे स्टूडियो में। That's wonderful. Thank you, Abhinav ji. Thank you. Thank you, Purva, also, and thank you the entire team. Do check out our Instagram handle for updates on the upcoming session. Our next session is with Riaz and Elodie from Atelier Lal Mitti on 5th of September on Saturday. Thank you everyone for your time and have a great weekend.